Hello students, welcome back in social science lecture class 10th civics lesson number 2 which is federalism. So this is part 2 of this chapter students. As you know that part 1 we have completed in our earlier session. So I hope you have understood and you have enjoyed that lecture and you have cleared with the concept. But still, if you're having any doubt related to the concept or related to the part 1 content, then you can ask me in feedback section. I'll try to solve your doubt and I will try to clear your concept there. So students, in today's lecture, what are we going to discuss? So in today's lecture, we are going to discuss the remaining part of this chapter. But before moving further, I would like to give you today's thought. As usual, we start our lecture with the good thought. So here, today's thought: enjoy the little things in life, for one day you will look back and realize they were the big things. Yes, my dear children, try to enjoy each and every moment in your life because when we look back, we realize that they were the big things. So, students, whatever situation may be, though you are facing any difficulty in your life, but don't leave the hope, don't quit that roads of difficulty because one day definitely it will become the big things because difficult roads always reach to the beautiful destination. So, my dear students, we also have to reach to the beautiful destination. So, with this good thought and with this great positivity, let's start today's lecture. So, students, here I would like to take snap a recap of earlier part. So, what is the name of our chapter? Federalism. And our chapter, it starts with the story of two countries. Which are those? Belgium and Sri Lanka. So, with these two stories of two countries, we have seen there the story of power sharing. And on the basis of that power sharing, we tried to understand there the concept or the definition of federalism, which is available right now in front of you. So with the help of this diagram, I tried to explain you the meaning of the federalism. I hope you understood. But once again, here I would like to recap, or I would like to explain the meaning of federalism. So what is a federalism, students? So federalism, it is a division of power, and that power, in which sector that power is divided? So the power is divided between central government and state government, and both levels of governments enjoy their power independent. Okay, so what can be the definition form here? That federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority or a central government and the various constituent units, means the various state government. So with the example, already students, we have understood this, or I have cleared the meaning of this definition. So I hope it is clear to you. Then in furthermore part, what have we seen there on page number 15? But yes, my dear children, one thing here I forgot to tell you, that please, while listening this audio, especially of social science, please take your textbook with you, and whatever I am explaining, try to recall with the page number also. Okay, so I hope all you are having your textbook with you and you are listening like that only. So whatever the definition and examples of Belgium and Sri Lanka we have seen on page number 14, and again one map is also has provided there where we have seen what countries are available there as a federal countries, or which are federal countries available there in whole world. So I hope
You understood till now? Then on page number 15, we have seen there the different features of federalism. Means what? With those features of federalism, what we try to understand means if any country wants to adopt the principle of federalism, means which features they need to adopt there, or to which country we can call as a federalism country. So which features should be there in that country's administration. So there I have given you the example of car also. Okay, मीन्स अगर हम कोई कार लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो फीचर्स देखते हैं कि उस कार के फीचर्स क्या क्या है, एंड देन वी डिसाइड टू बाय दैट कार. सो लाइक दैट अगर किसी कंट्री ने फेडरलिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट करने के बारे में अगर सोचा है, मीन्स if they want to be their country as a federalism country, then which features they need to adopt. So how many features are available there, students? Yes, how many? Yes, I am assuming now, students, that though I am unable to listen you all, but I am assuming here, I am imagining here that you people are answering me. Okay, so how many? 7 features are there. Yes, all are very intelligent students. So yes, you people are correct there. We have seen there 7 features of federalism. So which are those? So you have to keep in your mind, my dear students, because this can be there the direct question for 5 marks. Then what about the definition of federalism? So it can be, not can be, but it is very very important as far as your very short answers are concerned. Okay. Now in furthermore, what have we seen there? On the same page, on page number 15, we have seen there the next point, that is types of federalism, where we have seen the 2 types of federalism. And which are those, students? No need to recall, because here I have mentioned in this slide. So coming together federation and holding together federation. So in coming together federation, what have we seen there? When some countries come together and they form the federation. So such type of federation, it is called as a coming together federation. इसके हमने कौन से examples देखे थे? Yes, yes, all are you right there? इसके हमने कौन से examples देखे थे? USA, Switzerland and Australia. Okay. Sometimes students, I am thinking there that you people are very lucky right now. Means I can't ask you the direct question. Means I am unable to know how many children of mine studying properly or not. So here means it's like a magic for you, or it's like a fun for you that teacher only asking question and she is only answering. But I believe on you all, my dear children, that you are preparing very well at your home, and when I am asking questions to you, that time you are recalling, and that time you are answering to me. Okay, so again coming back to the point, what have we seen there in coming together federation? So in this coming together, or in this type of coming together federation, some countries or bigger units come together and they form a federation, and which is called such type of federalism, it is called as a coming together federation. जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई हैव एक्सप्लेन ऑल्सो वाई इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. So I hope you cleared with the idea. Then the second type we have seen there, holding together federation. So the title or the name only suggests that in holding together federation, hold is available there of one bigger unit on the subordinate units. यानी क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका होल्ड होता है किसके ऊपर, तो बाकी के स्टेट्स के ऊपर. इनके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे. विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरलिज्म और ऑफ दिस टाइप ऑफ फेडरेशन? सो येस, India, we adopted or we are following here the holding together federalism or holding together federation. Again, 2 examples are also there, my students. Which are those? Yes, if the textbook is with you, then the examples have been mentioned here. India means on line number 5. In line number 5, examples are available: India, Spain and Belgium.
Okay, so these are the examples of this kind of holding together federation. So I hope it is clear, you understood all the ideas which we have already discussed in our earlier session. Then we have seen there the very important topic from your chapter. Now turn the page, students. Now we are coming on page number 16, where we have seen what makes India a federal country. Now till now we have seen sorry, till now we have seen there what is mean by federalism, definition of federalism, types features of federalism and types of federalism. Means till now we have seen there the theory part. यहाँ तक हमने कहानी में क्या समझा कि फेडरलिज्म एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके टाइप्स क्या क्या है. नाउ अभी हम लोग इस पॉइंट में क्या देखने वाले हैं या हमने क्या देखा. सो वी हैव कंप्लीटेड ओनली हाफ. मीन्स ये जो पॉइंट था स्टूडेंट्स, इन माई अर्लियर लेक्चर आई हैव नॉट एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली. इसको हमने पूरा नहीं किया था, हाफ पार्ट हमने इसका देखा था. ओके, सो इन दैट पार्ट व्हाट हैव वी सीन देयर, दैट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी इंडिया को फेडरल कंट्री, कौन से फीचर्स इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं, या इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री कहा जाता है, तो उसका उसमें प्रोविजन क्या है, दैट थिंग वी हैव सीन. ओके, नाउ in part 1 what have we seen there or what have we discussed there in part 1. So students, this topic is very very important. Okay, one direct question can be formed there, that and this point it is also have been given here in question form only, that what makes India a federal country, and this can be asked there like this only in your exam. So try to understand what makes India a federal country. But here again one thing I would like to tell you, that which is our next point, that is how is federalism practiced. यानी ये जो दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, so whatever right now I am going to explain, those point you have to mention. Okay, I hope it is clearing. And then the next point is available there, how is federalism practice, यानी इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन. ओके, तो इन दो क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. स्टूडेंट ऑलवेज और यूजुअली कंफ्यूज बिटवीन these two questions. Means if question will be available there, what makes India a federal country, so most of students they write there how federalism is practiced in India. So ये confusion को मैं अभी clear कर रही हूँ. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, सो वॉट एवर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दोज पॉइंट्स यू हैव टू mention there in your answer, and those points you have to elaborate in your answer. So don't worry students, don't panic here. It's a very good and important topic and very very easy topic. So let's try to understand here, which we have already discussed. Means see students, this topic I have divided in two parts. ओके, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, सो इस पॉइंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो दिस इज पार्ट 1. ओके, सो इन दिस पार्ट 1 ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया को फेडरल कंट्री कौन सी चीज़ें बनाती है. इन इंडिया वो कौन सी चीज़ें अवेलेबल है जिसकी वजह से इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. And already we have discussed this point, so in short I will give you here the idea about this concept. So first point here I have mentioned, constitution declared India as union state. Means in our constitution students, हमारे देश को फेडरलिज्म कंट्री ऐसा कहीं पे भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है. मीन्स इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन फॉर आवर कंट्री. Then what did it declare? So the Indian Union is based on the principle of, though the Indian Union or though the India is based on the principle of federalism, after that also in constitution they didn't use there the word federalism or the federation for India. Then they what did they use for India?
So they declared India as a union state. Instead of federation or instead of federalism, which word they have used for India? They declared in constitution to India as a union state. Though India followed there the principle of federalism, after that also in India's constitution, students, इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है? एज ए यूनियन स्टेट. इस पॉइंट को आपको समझना है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है स्टूडेंट. तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे समझना है कि इंडिया कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है, तो फेडरलिज्म की, यानी कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अपनाया है इंडिया ने, तो फेडरलिज्म का. लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को फेडरलिज्म ऐसा कहीं पे भी डिक्लेरेशन नहीं मिला है. तो इंडिया को एज ए क्या डिक्लेयर किया गया है? यूनियन स्टेट. तो इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग जो है इंडिया को क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरलिज्म. मीन्स इंडिया कौन सा फेडरलिज्म फॉलो करता है? तो क्वाजी फेडरलिज्म. क्वाजी फेडरलिज्म यानी फेडरलिज्म तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है. अगेन सम साइंटिस्ट और सम ऑथर्स दे ऑल्सो कंसिडर टू इंडिया एज ए सूडो फेडरलिज्म. सूडो फेडरलिज्म मीन्स झूठा फेडरलिज्म जिसे हम कहते हैं. सो लाइक दैट. Okay, it is not mentioned in your textbook, but if you search or if you investigate about this federalism structure related to India, then definitely you will be getting this information there. So I hope students you understood here that why does it called as a quasi-federalism or the pseudo-federalism, because in India's constitution it declared India as a union state instead of federalism. Then India followed there the three-tier system. Yes. Why? What makes India as a federal country? So students आप लोगों को ये सारे points mention करने हैं, then उसको आपको elaborate करना है. तो इंडिया को कौन से वो features है जो federal country बनाते हैं? तो three-tier system is available there in our government. Which are those? Central, state and local. Okay. Then constitution clearly provided a threefold distribution of the union government and the state government. Then कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है अबाउट यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें कौन सी चीज़ें आएंगी या वो किस चीज़ों के ऊपर अपना वॉच रखेगा या कौन सी चीज़ों को वो हैंडल करेंगे. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. एंड अगेन इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इट इज़ वेरी क्लियर कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन से मैटर्स आएंगे. और ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी गई है? सो दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी चीज़ें हैंडल की जाएगी और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी चीज़ें हैंडल की जाएगी. सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्री लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड इन दोज थ्री लिस्ट ऑल द मैटर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड देयर दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से अफेयर्स हैंडल करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कौन से मैटर हैंडल करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स हैंडल करेंगे और दोनों मिलके कौन से मैटर्स हैंडल करेंगे. सो थ्री लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड देयर. सो विच आई हैव नॉट मेंशन इन माय अर्लियर सेशन और अर्लियर लेक्चर. सो हियर आई हैव डिवाइडेड दोज थ्री लिस्ट in three columns. So now it will more clear to you students. What are we seeing here? What makes India a federal country? उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है? एज ए यूनियन स्टेट. देन हमने देखा कि इंडिया में क्या है? तो थ्री टायर सिस्टम है. विच आर दोज? जो कि फेडरलिज्म का फीचर है. ओके. सो इसीलिए ये इंडिया को क्या बनाता है? फेडरल कंट्री बनाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिलेट हियर. एंड देन उसके बाद हमने देखा कि ये जो भी है मीन्स सेपरेट जुरिडिक्शन है इसके लिए, यानी जो भी यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है तो इनका सेपरेट जुरिडिक्शन है, यानी इनके जो भी मैटर्स है ये कम्प्लीटली सेपरेट है. और इसमें मीन्स व्हाट कैन वी से देयर. सो इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लेने का जो भी अधिकार होता है तो इनका इंडिपेंडेंट होता है इन सच मैटर. ओके. सारे के सारे मैटर्स में नहीं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी गई है? सो इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्री लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड देयर सच एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? सो लेट्स क्लैरिफाई हियर स्टूडेंट्स. सो इन यूनियन लिस्ट कौन से मैटर्स आते हैं?
हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स कि करेंसी मीन्स एक स्टेट में अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, तीसरे स्टेट में अलग है। हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा था। किसने ये कंसेप्ट लाया था? रिकॉल, किसने लाया था? यस, नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया था। यस, ऑल आर माई वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गिविंग आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो भी नेशनल अफेयर्स होते हैं, यानी जहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज की ज़रूरत होती है, यानी एक जैसा लॉ की ज़रूरत होती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट होता है जिसमें, तो ये सारे मैटर्स कहाँ पे आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। और ये मैटर्स कौन से हैं? फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस है या फिर करेंसी है। बैंकिंग का यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि बैंकिंग यानी पूरे नेशन में एक जैसा लॉ होना चाहिए, अदरवाइज पीपल मे हैव फेस देयर द डिफिकल्टीज. So the foreign affairs also like that, and currency is also like that. Means if we are having there the different currency as per the state, then definitely we will be having or we will be facing there the lots of problem. So ये सारे matters जहाँ पे uniformity होनी चाहिए होती है law की. So all this matter in which list includes in union list, जिसके ऊपर watch किसका होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वॉच होता है, या फिर ये सारे जो भी मैटर्स है ये कौन हैंडल करता है? यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करता है. ओके, और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है. देन यूनियन अलोन कैन मेक लॉ. यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो अकेले लॉ बना सकते हैं. और कौन से मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं? तो जस्ट नाउ वी हैव सीन. सॉरी. देन coming back to the moving next to sorry students, moving to the next point, which is state list. So in the state list, state government alone can make law. ये जो state list है यहाँ पे कौन law बनाता है? तो state government law बनाता है. And it has subject of local and state importance. और इसमें subject यानी क्या? matters. इसमें matters कौन से आते हैं? तो जो भी लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या इरिगेशन है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं. ओके, सो आई होप योर यूनियन लिस्ट इज क्लियर एंड स्टेट लिस्ट इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज कॉन्करेंट लिस्ट. सो स्टूडेंट्स, इन कॉन्करेंट लिस्ट समटाइम्स स्टूडेंट्स कैन कन्फ्यूज देयर. सो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं? तो जहाँ पे मीन्स दोनों गवर्नमेंट क्या रखते हैं? अपना वॉच रखते हैं या दोनों गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं. अभी ये कौन से सब्जेक्ट है? सो इट हैज़ सब्जेक्ट्स और कौन से मैटर्स है? ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी दोनों गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं. सो बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉ. तो दोनों गवर्नमेंट इस टाइप के जो भी मैटर्स होते हैं उसके लिए क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं. देन ये ऐसे कौन से मैटर्स है? तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियन ट्रेड है, देन मैरिज है. सो इस टाइप के जो भी मैटर्स है ये सारे कौन से लिस्ट में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ apart from this three list, again one list is remained there, which is available there on page number 17. So exactly the part 2 of this chapter, now it is starting here. So till now we have seen in our earlier session only, or in our part 1. I hope students it is very clear to you now, but still if you are having any doubt, then please you can ask me. Now apart from this three list, one list is also available there, and that is residuary list. Now what is this residuary list? So students, here I want to tell you, when our leaders they were forming the constitution, they were having a tremendous or the great kind of forecasting eyesight. Means what? वो बहुत दूर की सोचते थे. उन्हें ये पता था कि अभी की सिचुएशन डिफरेंट है. Means when they were framing or when they were writing the constitution, that time situation was definitely different. But उन्हें ये पता था the same situation will not be there after 20 years or after 30 years. So new subject can be arise there. So new matters can be arise there. तो अगर वो नए matters आते हैं तो वो कौन सी लिस्ट में जाएंगे? तो उस
सारे नए मैटर्स के लिए उन्होंने तभी प्रोविजन करके रखा, वो सारे नए मैटर्स कौन से लिस्ट में जाएंगे, तो रेसिड्यूरी लिस्ट में जाएंगे या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में जाएंगे। अभी आर द सब्जेक्ट, हियर आई हैव मेंशन स्टूडेंट्स, रेसिड्यूरी पावर क्या होती है, आर द सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दिस 3 लिस्ट, यानी रेसिड्यूरी लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं जो इन 3 लिस्ट में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, in those days technology was not available there, or the computers were not available there. So after, but right now technology or the computers are definitely is means computer or the technology is definitely the great matter. Means right now you people are sitting at home and enjoying the lecture. Why? Because of technology. So ये जो भी मैटर है, ये सारे मैटर्स कौन से लिस्ट में जाएंगे और उसके ऊपर किसका वॉच होगा। सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 17 सेकेंड पैराग्राफ इज अवेलेबल हियर which I am reading now. What about subject that do not fall in any of the 3 list, or the subject like computer software that came up after the constitution was made? मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद आते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स कौन से लिस्ट में डाले जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन दिया गया है। एंड व्हाट इज द प्रोविजन? सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। कंप्लीटली होल एंड सोल डिसीजन किसका होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट का होगा। जो भी मैटर्स, नए मैटर्स होंगे विच वर नॉट अवेलेबल ऑन, मीन्स विच वर नॉट अवेलेबल देयर in earlier days, but right now those matters are available there, तो ऐसे matters कहाँ पे जाएंगे? In residuary subject. So I hope my dear children it is clear. So total together 4 lists we have seen. Which are those? Union list, state list, concurrent list and residuary list. Students, you have to keep in your mind very very clearly which point we are seeing, what makes India a federal country. If question will be there, then all these points you need to mention. Now for the same question answer we are moving further, जिसको मैंने part 2 करके यहाँ पे लिखा है, what has made India a federal country, उसी point का part 2 मैंने दिया है। तो 3 points already we have seen earlier. Okay, now 3 remaining points we are seeing now. So which are those? So 4th point I have mentioned here, that all state in the Indian Union do not have identical power. For example, union territories, यानी क्या कि सारे स्टेट को, बिकॉज सी स्टूडेंट्स वी नोटेड, मीन्स इफ यू नोटिस्ड देयर, सो विच फेडरेशन इंडिया फॉर्म्ड, सॉरी विच फेडरेशन इंडिया अडॉप्टेड देयर? सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सो इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इट डू नॉट गिव इक्वल पावर टू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स और ऑल स्टेट, यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का ये फीचर ही है कि वो सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं देता है. So thus all state in Indian Union do not have identical power. So इसीलिए सारे इंडियन जो स्टेट्स है सबको एक जैसा पावर नहीं है. Some states enjoy a special status. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि ये एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर. स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में ही अवेलेबल है. एंड राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 3rd पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 17. What I am telling you now, coming back to the point. So as per the holding together federation, some states of our country they enjoyed their the special status. For example, Jammu and Kashmir, जो आर्टिकल 370 है स्टूडेंट्स, वो इसी के लिए है, जो A, B, C जो भी सेक्शन है उस आर्टिकल में, तो ये वही सेक्शन है. तो अंडर दैट आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर इट एन्जॉयज देयर द स्पेशल स्टेटस. अभी वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हियर अबाउट यूनियन टेरिटरी. एंड जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ नोन एज ए यूनियन टेरिटरी. अभी ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है? सो there are some units of the Indian Union, or there are some states in India which enjoy very special power. And why this is so? Because they are very small to become an independent state, but which could not be merged with of any existing states.
ऐसा क्यों होता है, यानी ये यूनियन टेरिटरी, इसे यूनियन टेरिटरी क्यों बोला जाता है? बिकॉज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि साइज़ में बहुत ही स्मॉल होते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित नहीं किया जा सकता और उन्हें किसी दूसरे स्टेट में भी मर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बैरियर्स है। अभी वो बैरियर्स कौन से हैं? तो जोग्राफिकल बैरियर्स है या फिर अदर कल्चरल बैरियर्स है। मीन्स जोग्राफिकल बैरियर्स यानी अगर अंडमान निकोबार आइलैंड अगर है तो डेफिनेटली मीन्स जोग्राफिकल बैरियर्स आर देयर, बीच में समंदर आता है, बीच में पानी है, तो हमें लगा कि चलो मीन्स अंडमान निकोबार को हम हमारे महाराष्ट्र में इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो जोग्राफिकल बैरियर्स आर अवेलेबल देयर। देन कल्चरल बैरियर्स कौन से हैं? तो मीन्स जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो अगर मीन्स दो स्टेट को मर्ज किया जाता है तो अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये सब करने से बेटर समझा हमारे लीडर्स ने कि कुछ स्टेट्स को क्या दे दिया जाए, इंडिपेंडेंट पावर दे दिया जाए और उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए। आई होप स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट इट इज क्लियर हियर। देन चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। और अगर इस ऐसे केस में अगर मीन्स कुछ लॉज को चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर नए लॉज अगर पास करने हैं, तो दोनों जो भी गवर्नमेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों का मेजोरिटी होना ज़रूरी है अगर कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी चेंजेस करना है पावर शेयरिंग में। ओके, देन in case of any dispute regarding division of power, the expect court will take the decision. लेकिन after that also means now I am explaining here the last paragraph on page number 70. ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मत नहीं हो पाता है किसी डिसीजन के ऊपर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि येस दिस लॉ इज़ बेटर एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स देयर दैट नो दिस लॉ इज़ नॉट बेटर एट ऑल, सो इफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन two levels of government will be there, then who will be having there the right to resolve this conflict or to take the decision? Then judiciary plays there an important role. So in case of any dispute regarding division of power or regarding any law, that time court will take the decision. So this is all about, my dear children, what makes India a federal country. If the question will be there, then these 6 points you need to mention. You have to start this point with a very beautiful introduction, and then you have to mention these 6 points and you have to conclude your answer in this way, and then you have to mention your conclusion there, that in this way India makes a federal country. Then definitely you will be getting there 5 out of 5 marks. Okay, and one more thing students, try to keep in your mind the sentence from your textbook. जो NCERT के, देखो students आप लोग कोई भी reference book use करो, I don't have any objection, but try to use there the NCERT language or try to pick up the sentence from your textbook only, because it will definitely give you, or it will definitely give the good impact to your answer, and when your evaluator will check the answer, that time it impress there and you can get there good marks. So I hope you enjoyed this point. Now moving further students, very interesting point is coming up now, and here the point is, how does India practice power sharing? Students, see, till now what have we seen? What makes India a federal country? Now we are moving to the next point, which is available on page number 19, and which is that point, so how does India practice power sharing? अभी इंडिया फेडरल कंट्री तो है, ओके, और इंडिया में फेडरलिज्म में क्या क्या है वो भी हमने देखा, ओके, बट हाउ एग्जैक्टली इट हैज़ बीन प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कैसे की गई है या इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इन इंडिया, this thing now we are going to see. So students, in first paragraph only here one concept is given, that is constitutional provision are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. Okay, now देखो, if the federalism experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic policies in our country.
नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय दिस? तो ये पूरा पहला पैराग्राफ जो है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म it is depends upon the nature of democratic policies which country possess. यानी क्या कि किसी कंट्री में अगर फेडरलिज्म सक्सेसफुल होता है तो वो कब होता है, और ये कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, जो उस कंट्री में पजेस किया जाता है, तो ये जो फेडरलिज्म है इसका सक्सेस कम्प्लीटली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विच कंट्री पजेस. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे देश में फेडरलिज्म हम लोग फॉलो करते हैं. सो व्हेन कैन वी से देयर द फेडरलिज्म इज सक्सेसफुल इन आवर कंट्री? व्हेन वी विल बी हैविंग देयर द गुड डेमोक्रेटिक पॉलिसीज in our country. Means what student? In a simple word I would like to tell you. देखो फेडरलिज्म एंड सक्सेसफुल फेडरलिज्म. ओके, फेडरलिज्म तो है, यानी जैसे कि हमारे देश में फेडरलिज्म है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है? तो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर है, ओके, और एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, या फिर एक्टर का एग्जाम्पल ले लो. कोई एक एक्टर है और एक सक्सेसफुल एक्टर है. एक्टर है यानी वैसे तो एक्टर कहने के लिए तो मैं भी एक एक्टर हूँ, आप लोग भी एक एक्टर हो, आप भी किसी की एक्टिंग कर सकते हो, या मैं भी किसी की एक्टिंग कर सकती हूँ, या मैं भी किसी का आवाज़ निकाल सकती हूँ, मिमिक्री कर सकती हूँ, या आप भी. बट आर वी सक्सेसफुल एक्टर्स? नो, because we do not have any kind of achievements in that section. So like that, federalism and successful federalism means here again we can take an example of श्रीलंका. अगर श्रीलंका ने उठ के कह दिया कि yes we are a federal country, लेकिन क्या वो उन सारे फेडरलिज्म के जो भी फीचर्स थे क्या वो उनको फॉलो कर रहे थे? तो क्या हम श्रीलंका का जो भी फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था उसे सक्सेसफुल फेडरलिज्म कह सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. Understood students? So how is practiced, or how the federalism is practiced in India, or how the successful federalism can be practiced? So this is all about this point. So in this point we are going to know कि किसी भी कंट्री में अगर फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो वो सक्सेसफुल कैसे होता है, और इंडिया में उसको सक्सेसफुल कैसे बनाया गया है. So this point we will understand with the 3 pillars. And which are those? So linguistic state, then language policy, and the central state relation. So students, with these 3 points or with these 3 pillars we are going to understand how is federalism practiced in India. Okay, so these 3 pillars are here which proves that yes we are federal country. Okay students, so first लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स फर्स्ट पॉइंट मीन्स ओवरऑल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं स्टूडेंट्स. बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी पहला जो है लिंग्विस्टिक स्टेट. सो बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, new states have been created since 1947. So students, when our country got an independence, that time situation was very different. Means that time these many states we were not having. Means only 14 states were available there and 6 union territories were available there. But gradually when the time changed, these federalisms evolution has happened there. यानी ये federalism का structure क्या होते गया, इसमें evolution होते गया, and after many years इसको मीन्स इसमें इवोल्यूशन होके क्या किया गया, न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947. 1947 से नए स्टेट्स बनाए गए, और वो नए स्टेट्स किसके आधार पे बनाए गए? दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. ये जो भी स्टेट्स बनाए गए स्टूडेंट्स, तो इसको किसके आधार पे बनाया गया? तो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज. So here in your textbook it has mentioned some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. Some states, कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, कुछ स्टेट्स जो है कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफिक रीजन से भी बनाए गए. जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग रहते हैं. तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दिस डिवीजन हैज़ बिन डन देयर ऑफ द स्टेट. यानी ये जो भी स्टेट्स का डिवीजन किया गया है तो ये आता है अंडर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. और कुछ ऐसे भी स्टेट्स है स्टूडेंट्स जहाँ पे कल्चर को फॉलो किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर उसका डिवीजन किया गया है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक रीजन्स ऑल्सो सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये जो भी नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट है, तो ये किसके बेस पे बनाया गया है? कल्चर के बेसिस पे एज वेल एज जोग्राफिक रीजन के बेसिस पे भी बनाया गया है। यानी अगर जोग्राफिक रीजन यानी जैसे मैंने अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल आपको पहले वाले इसमें भी दिया है, सो लाइक दैट। I hope you understood first point. Then this was all about the linguistic states. Now students, we are moving further to the second point or the second pillar of this federalism, that is language policy. Means in India how the language policy is work. Now students, again question comes there that in India many languages have been spoken there, or it is practiced, people are practicing with the many languages, because we people are having diversity, too much diversity. After that also we are united. So why we are united? Because our country adopted there the language policy. Now what is mean by this language policy? So no language has been given the status of the national language by the constitution. So हमारे country में किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है, किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि येस हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट येस it is a majority speaking language, means 40% of Indians they are speaking Hindi language, and 60% people they are speaking there the different languages. Okay students, so I hope this point is clear. Then about the language policy only, I would like to tell you here that besides Hindi there are 21 other languages recognized as a scheduled languages by the constitution. In constitution how many languages? Means 21 languages को recognize किया गया है as a scheduled language. ये ऐसा क्यों किया गया है students? यानी जो भी minority के languages है उनको भी उन्होंने उतना ही dignity दी है. They have given there the dignity to all those scheduled language also, ताकि लोग अपनी डिग्निटी को बनाए रखें या उन्हें कहीं पे ये फील ना हो दैट देयर डिग्निटी इज़ वायलेटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड हियर. और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इन फ्यूचर हार्मनी शुड बी देयर एंड पीपल शुड लीव देयर विद द हार्मनी, बिकॉज वी हैव सीन देयर द केस ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में कौन सा मीन्स लैंग्वेज पॉलिसी को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया गया था. सिनाला ने अपनी जो लैंग्वेज थी तो उसी लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज उन्होंने घोषित कर दिया था. एंड देन वॉट एवर थिंग्स हैड हैपेंड इट टर्न टूवर्ड्स द सिविल वॉर एंड एवरीथिंग यू नो वेरी वेल. So in our Indian constitution our leader they have taken care there very well. उन्होंने बहुत अच्छे से with care, उन्हें ये पता था it is sensitive issue because India is having there the multiple languages. तो उस issue को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से handle करके सारे languages को क्या दिया, एक equal importance दिया. So this is the language policy. So students, in short I have explained here, this is very very easy. So once if you read it on the basis of this point you will be able to understand. Now the third pillar is available there, that is central state relation, which I have mentioned here in this point, that restructuring of power sharing between center and state. अभी ये center state relation ये point क्या है? So restructuring of power sharing between center and state, rise of regional political parties and coalition government has led to a new culture of power sharing. Now students, ये point समझने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूँगी, जो कि मीन्स आफ्टर एन इंडिपेंडेंस एक कांग्रेस का एरा चला था, यानी नियर अबाउट 1980s या 1985 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ही चलता था. एक सिंगल पार्टी सिस्टम मान लो होता था. तो जब ये सिंगल पार्टी सिस्टम था मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस वॉज अवेलेबल देयर एंड इन स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो द कांग्रेस पार्टी वॉज अवेलेबल देयर. सो व्हाट हैपेंड देयर मीन्स व्हेन दिस in central government Congress party or the same party was available there, and in the state government is also the same party is available there. So dominance happens there, means central government can dominate to the state government, and then gradually when in regional government other party came there, that time also the dominance started to happen there by the central government to the स्टेट गवर्नमेंट और ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. मीन्स अभी ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर क्या बताता है कि फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में डोमिनेंस को कहीं पे भी जगह नहीं है स्टूडेंट. देयर इज़ नो प्लेस ऑफ डोमिनेंस इन द
स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हो रहा था, आफ्टर एन इंडिपेंडेंस इस स्ट्रक्चर को मीन्स फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जो था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई द रिकंस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसको। ये सब कब तक चलता गया, टिल 1990। और ये चेंज कब हुआ, सो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंट आफ्टर 1990। ये कब चेंज हुआ, 1919 में चेंज हुआ। और किसके साथ चेंज हुआ, तो जब कोएलिशन गवर्नमेंट अराइज हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट का जब ये आया, कॉन्सेप्ट आया, तब ये जो भी डोमिनेंस था स्टेट और सेंटर रिलेशन का, या स्टेट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डोमिनेशन का रिलेशन था, ये ख़त्म हुआ कब, 1919 में, जब क्या आया, कोएलिशन गवर्नमेंट आया। अभी कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है स्टूडेंट्स, सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, व्हेन द मेजॉरिटी डू नॉट हैपन देयर, दैट टाइम different parties came together and they formed there the government. So that type of government it is called as a coalition government. So ये सब जो भी था स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट का रिलेशन, ये हमने देखा इन स्टार्टिंग डेज ये कैसा था, डोमिनेशन का था। लेकिन ये कब खत्म हुआ, जब कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया इन 1990, तब ये खत्म हुआ। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे than it was in the early years after constitution came into force. Okay, जब मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तब फेडरलिज्म का ये जो भी स्ट्रक्चर था इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आज के डेट में डेफिनेटली फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड लास्ट पॉइंट हियर आई हैव मेंशन थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव पावर जो भी है, थ्री फोल्ड डिवीजन क्या है, तो you know very well. So I hope students you have understood this point clearly. Now again here also means before concluding this point students, I would like to tell you this also can be the direct question for 5 marks, that how does India practice power sharing. So all these 4 points you have to mention there, and little bit explanation you have to give there. Very beautifully you have to give there the introduction, then you have to mention these 4 points, and you have to give there the conclusion, and you can sum up your answer and you can get there 5 marks. Now students, we are moving further to the, so यहाँ पे मैंने देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। तो many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common languages. so ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए स्टूडेंट्स। I can wait here so you can take the screenshot of it. Then लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स जो सेकंड पॉइंट है उसके टाइटल में आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या क्या था, तो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। देन सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। 21 should be there, okay, here 22, so it is wrong in your textbook, it has given 21 and 21 only is correct, okay students. Then center agrees to use English along with Hindi, by this flexibility is shown. So you can take the screenshot of it. Then central and state relation में हमने देखा कि central government cannot undermine the power of state or dismiss them, okay. और जो कि पहले होता था, अंडरमाइन किया जाता था या डिसमिस भी किया जाता था फ्रॉम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट ये सब कुछ ख़त्म हुआ जब कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया. So I hope students it is clear now. Now one very big and important topic we are going to start here, which is decentralization in India. Let's try to understand student what is mean by the decentralization in India. So when power is taken away from central and state government and it given to the local government, यानी जब डिसेंट्रलाइजेशन यानी क्या, अगर कोई एक सेंटर है तो उसे पावर लेके क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड एज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. Now why it is needed there of the decentralization? So because India means vastness of the state in size and population. India is such a big country. तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते थे वो लोकल इश्यूज तक नहीं पहुंच पाते थे, एंड दैट्स वाई दे वांटेड देयर some alternative government to solve the local level problem. इंटरनली डाइवर्स, अभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है मीन्स इंटरनली डाइवर्स सिस्टम इज अवेलेबल देयर. सो दैट्स वाई इट नीड्स फॉर पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग की वहाँ पे ज़रूरत थी
किसके लिए? तो लोकल इश्यूज के लिए. एंड दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इमर्ज देयर. I hope students it is clear there. What are we seeing? Decentralization in India. Decentralization means what, students? तो ये means सेंट्रल पावर को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पावर दिया गया था उसको डिसेंट्रलाइज करके पावर किसे दिया गया था? तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था. इट विल मोर क्लियर इन नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. सबसे पहले ये समझते हैं स्टूडेंट कि तीसरा गवर्नमेंट फॉर्म करने की क्या ज़रूरत आई या डिसेंट्रलाइजेशन करने की क्या ज़रूरत थी. सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस डिसेंट्रलाइजेशन. सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन इस आइडिया के साथ क्लैरिटी रखो स्टूडेंट्स. व्हाट इज मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? सो हियर आई हैव मेंशन when power is taken away from central and state government. जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके किसको दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को दिया गया. दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज ए डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, नाउ ये पावर लोकल गवर्नमेंट को देने की क्या जरूरत आन पड़ी? सो लेट्स ट्राई टू क्लियर हियर दैट बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो with this slide students it will very clear, and this can be also the answer of one big question, that what are the basic ideas behind the decentralization. If such type of question will be there, then you have to write the proper answer of this question. You can mention all this point, so you can take the screenshot of it also, or you can write it also. So first point here I have mentioned, solving large number of problems and issues at local level. means जो भी लोकल लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे स्टूडेंट्स, यानी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं सॉल्व होते थे, तो इसीलिए लार्ज नंबर में उनके प्रॉब्लम्स या इश्यूज लोकल लेवल पे ही सॉल्व किए जाए, इसीलिए लोकल लेवल को पावर दिया गया. देन पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़. अभी प्रॉब्लम यह होता है कि सेंट्रल तो बहुत दूर की बात है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होते. तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता किसे होता है? तो वो जो लोकेलिटीज़ के लोग होते हैं उन्हें इसके बारे में बेटर नॉलेज होता है. सो दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और पावर किसे दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को. देन बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली. अभी जो लोकल इश्यूज़ के लिए जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं, तो वो पैसे खर्च करने का बेटर आइडिया, बेटर नॉलेज किसे है? जो लोग वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको उसका मैनेजमेंट या उस थिंग्स की इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छे से पता है. दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ बिन हैपेंड देयर and power has been shared with local government. Then the second last people's participation in decision making. Again means local government को जब पावर दिया गया तो लोकल लेवल के लोगों का पार्टिसिपेशन आया इन डिसीजन मेकिंग. एंड लास्ट पॉइंट हियर आई हैव मेंशन, टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट. और ये रियलाइजेशन हो कि डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग देयर द equal important. So that's why this was means the process of decentralization has been done there, that power को सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसे दिया गया, किसके साथ शेयर किया गया? तो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया. नाउ ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. और ये अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल. किस चीज़ के लिए? जो डेमोक्रेसी का जो तीसरा टायर है विच इज़ लोकल गवर्नमेंट, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 1992 द स्टेप हैज़ बीन टेकन देयर एंड विच वॉज दैट स्टेप? दैट स्टेप वॉज देयर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एज फार एज योर लॉन्ग आंसर इज क्वेश्चन, एज फार एज योर वेरी शॉर्ट आंसर इज कंसर्न, एंड एज फार एज योर शॉर्ट आंसर्स आर कंसर्न. So these steps you have to keep in your mind. Try to understand, student. So first step, it is mentioned here that it is mandatory to hold regular elections to the local government. यानी पहले local government पहले जो elections होते थे तो वो रेगुलरली नहीं होते थे. तो जो भी अमेंडमेंट हुआ इन 1992, एज पर दैट अमेंडमेंट इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस ऑन लोकल गवर्नमेंट ऑन लोकल लेवल.
देन रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड BCS, जो भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए. देन 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए. स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, देन स्टेट कमीशन का उनके ऊपर वॉच होगा जो कि पहले नहीं होता था. एंड द लास्ट पॉइंट हियर आई हैव मेंशन, स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर and revenue with local bodies. Then state government will share their power also and revenue also with the local bodies. So this is all about the amendment which had been done in 1992. So this can be there the direct question, students, that what are the steps had been taken there under the amendment of the constitution in 1992. So all these 5 points you have to mention if you want to get there 5 out of 5 marks. Now moving further, students, जो भी एक मीन्स ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट मीन्स ये जो भी लोकल गवर्नमेंट था, इस लोकल गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म कैसे था, तो हियर वी विल अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे पंचायती राज होता था जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल गवर्नमेंट कहते हैं. तो ये जो था, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम एज ए पंचायती राज. जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होता था इसे जाना जाता है एज ए पंचायती राज. अब ये जो पंचायती राज होता है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज ये मिल के क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं. और इस ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उसे सरपंच कहा जाता है. और इस सरपंच को इलेक्ट कौन करता है, तो ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं. और इस ग्राम सभा में कौन होता है, तो जो भी अबव 18 ईयर ओल्ड पीपल जो भी है एडल्ट, वो वोट देके किसे चूज़ करते हैं, तो सरपंच को चूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर विलेज लेवल पे कैसा ये लोकल गवर्नमेंट होता है. तो ग्राम पंचायत होता है जो कि फॉर्म्ड किया जाता है बाय ग्राम सभा. भी ग्राम सभा यानी कौन, तो जहाँ पे सारे एडल्ट लोग हैं अबव 18, और इनका जो हेड होता है उन्हें क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है. तो ये होता है एक डायरेक्ट इलेक्शन. ओके, देन the second level is here available, which is block level, or which is also known as a मंडल, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए पंचायत समिति. सो ये जो पंचायत समिति होती है स्टूडेंट्स, इस पंचायत समिति के जो भी लीडर्स होते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है, तो ये जो भी पंच होते हैं या सरपंच होते हैं ये इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति को. और पंचायत समिति को कैसे फॉर्म किया जाता है, तो जो भी ग्राम पंचायत होती है उन सारी ग्राम पंचायत को मिला के ये पंचायत समिति को बनाया जाता है. ओके, एंड देन ये जो भी पंचायत समिति होती है, इन पंचायत समिति को मिला के क्या बनाया जाता है, ज़िला परिषद बनाया जाता है. जिसे कौन इलेक्ट करता है, तो जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसे, ज़िला परिषद के मेंबर्स को. एंड जिला परिषद के जो हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद. अभी इसे पॉलिटिकल हेड क्यों कहा जाता है, तो ऐसे डायरेक्टली इन्हें बिठाया नहीं जाता है प्लेस पे, इसीलिए मीन्स इलेक्ट करके उन्हें हेड बनाया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. सो आई होप स्टूडेंट्स you are cleared with this panchayati raj or the local self government. Students, in a very means in short I would like to tell you here, ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये किस तरीके का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत जिनका हेड कौन होता है, सरपंच. ओके, देन आता है पंचायत समिति, ओके, जिनका हेड होता है चेयरपर्सन. देन फॉर्म होता है जिला परिषद जिनका हेड कौन होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. ओके, और जिन्हें कहा जाता है जिला परिषद चेयरपर्सन भी कहा जाता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर्ड नाउ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन का जो होता है वो कैसे होता है, तो टाउन्स में म्यूनिसिपलिटीज़ होती है और जिनके हेड को क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन. एंड बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जिनके हेड को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द local government. Students, now in conclusion I would like to give you here the preparation and the career mantra. Students, this chapter is very very important as far as your UPSC and MPSC exams are concerned. Again, prepare every chapter in question answer format only, as I have told you earlier also, and read the chapter and revise it daily. So students, here I would like to conclude today's topic.
Thank you so much. And means whatever the notes of this chapter we will provide you very soon. Till then, try to form here the objective questions. Try to write here the objective questions, or try to frame here the objectives question. So thank you so much, my dear children. We will meet soon. Till then, stay happy, stay blessed.